Good morning to you all. I welcome you all in my YouTube channel Saurabh Yadav Biology at Fingertips by Saurabh Yadav. Okay, so दोस्तों, in our previous lecture we are discussing the macro, micro and the deficiencies, all the things which we have concluded till now. The role of micro and micro elements, all these things have to be done. So इसको धीरे धीरे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक दे रखा है और एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये जो आपने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है कि मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स, तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है या क्वांटिटेटिव? सो माय डियर फ्रेंड, दिस आई हैव क्लासिफाइड element into two category, macro elements and second micro elements. Okay, so first of all I am taking the doubt of one of my student. Okay, so macro elements, my dear friend, I told you this is a classification or categorization that is based upon concentration, and concentration denotes quantity. What it denotes? Quantity. This means this classification is basically quantity wise classification, not the quality wise classification. So those elements that is having 10 millimole per kg of dry weight, so it is a concentration term. 10 millimole per kg of dry weight, and so those elements whose concentration is greater than 10 millimole per kg of dry weight considered into the macro element, and those whose concentration is less than 10 millimole per kg of dry weight can be considered into micro elements. So you have to remember that this is a qualitative type of classification, not the quantitative type of classification. Now I am continuing with my today's topic that I have to teach, that is deficiency symptoms of essential elements. This is the topic which we have to take. कई लोग सोच रहे होंगे कि सर इससे पहले तो दे रखा है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स, सो डोंट वेरी अबाउट ऑल दिस थिंग, वो हम अपने अगले वीडियो में लेंगे. पहले हम डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लेंगे. द फर्स्ट थिंग विच इज गिवन इन दिस डेफिशिएंसी सिम्टम इज critical concentration. This term has been given and it is asked also, what is the critical concentration? I am illustrating this point with the help of one example. Suppose this is a plant. Okay, as we know that it takes mineral and nutrients from the soil. So this is the soil. The daily requirement, it requires 5 milligram per day. It requires nitrogen. इसको नाइट्रोजन कितना चाहिए? इसको नाइट्रोजन 5 मिलीग्राम पर डे चाहिए. किस चीज के लिए? फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए. अगर मैं बोलूं कि कोई भी प्लांट है उसको नाइट्रोजन कितना चाहिए? 5 मिलीग्राम पर डे. इतना होना ही चाहिए, तभी उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी. ओके,
अगर इतना नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। सो ये जो 5 मिलीग्राम पर डे है, ये इसी को बोला जाता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ओके, अब अगर मान लो इस प्लांट को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, जो इस प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है, जो इस प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है वो कितना है, 3 मिलीग्राम पर डे। चाहिए कितना, 5 मिलीग्राम पर डे। मिल कितना रहा है, 3 मिलीग्राम पर डे। तो इस पार्टिकुलर नाइट्रोजन की इस प्लांट में क्या हो जाएगी, कमी। देन दिस नाइट्रोजन एलिमेंट इज नोन एज डेफिशिएंट एलिमेंट। व्हाट इट इज कंसिडर्ड एज, डेफिशिएंट एलिमेंट। यानी क्रिटिकल कंसंट्रेशन वह कंसंट्रेशन है, अगर उतना आपने एलिमेंट नहीं दिया उस प्लांट को तो उसकी कभी भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ओके, सो फॉर द प्रॉपर ग्रोथ क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा या उसके बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है कोई एलिमेंट तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे उसको, डेफिशिएंट एलिमेंट। ओके, सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन of both the things. Critical concentration, the concentration of essential element below which plant growth is retarded is termed as critical concentration. As I have already explained that कि वह कंसंट्रेशन अगर उस कंसंट्रेशन से कम मिलेगा, द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच, क्या क्या बात कर रहा है, बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, देन दिस इज नोन एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट is said to be deficient. The element is said to be deficient when present below critical concentration. यानी अभी मैंने एग्जांपल बताया, वहां क्या बताया कि 5 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की किसी भी प्लांट की, और उसको दे कितना रहे थे, 3 मिलीग्राम पर डे। तो उसमें नाइट्रोजन की क्या हो गई, कमी। सो द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट। तो वहां किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी हुई, नाइट्रोजन। सो द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन कितना था, 5 मिलीग्राम पर डे, दे कितना रहते, 3 मिलीग्राम पर डे। तो 3 मिलीग्राम पर डे क्या हो गई, डेफिशिएंट एलिमेंट, और 5 मिलीग्राम क्या चाहिए उसका, जो इतना रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। सो आई एम गिविंग सम अदर थिंग विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, दैट पॉइंट इज नेसेसरी। Each element has one or more specific structural and functional role in plants.
व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? जो भी एलिमेंट है उसका एक या एक से ज्यादा क्या होगा? स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल एंड प्लांट में। क्यों, कैसे, अगर मैं बताऊं, जैसे मैं बात करता हूं, कोई एक टिश्यू है, उसमें मान लो ये सेल है, प्लांट टिश्यू है, ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, ओके, मान लो ये क्या है? टिश्यू। तो अगर मान लो ये प्लांट टिश्यू है, कौन सी टिश्यू है? प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू की बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ओके, सेल वॉल ऑफ सेल ए, सेल वॉल ऑफ सेल बी, 1 और 2 कर देते। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको बोलते हैं मिडिल लैमिला। क्या बोलते हैं? यानी मिडिल लैमिला is the point that connect the cell wall of two cell in a tissue system. This middle lamella is formed by calcium pectate. Okay, calcium pectate. This means it is forming the structure of tissue. That's why it is saying that each element, the element is calcium. So each element has one or more specific structural and functional role in plants. For example, whenever you proceed further, then we are going to see that there are some elements that help in formation of chlorophyll, और उनकी अगर कमी हो गई तो उनकी कमी से क्लोरोसिस हो जाएगा, जैसे कि मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन। तो इन सब का फंक्शनल रोल क्या है? किस चीज को इनहेंस करना, किस चीज के फॉर्मेशन को बढ़ाना? क्लोरोफिल के फॉर्मेशन को बढ़ाना। अगर उनकी कमी हो गई तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रोल होता है किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, पहले ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए। क्रिटिकल कंसंट्रेशन वह कंसंट्रेशन है जिस, अगर उस कंसंट्रेशन से थोड़ी भी कंसंट्रेशन कम कर दी आपने तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। और एलिमेंट को हम लोग डेफिशिएंट कब कहते हैं? जब उसका कंसंट्रेशन किससे कम होगा? क्रिटिकल कंसंट्रेशन से। और हर एलिमेंट का अपना एक क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है इन प्लांट्स। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू इलेबोरेट। First of all, note it down. Now, आगे बढ़ते हैं। The next point which is given in the NCERT, that what do you mean by deficiency symptom? Deficiency symptoms. दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में पढ़ता था तो मुझे बड़ा दांत में दर्द होता था। तो एक बार मैं अपने डॉक्टर के पास, अपने नहीं किसी और डॉक्टर के पास ही गया। ठीक है, ही इज नॉट माई ब्रदर। ठीक है, उसके पास मैं गया तो मैंने उससे पूछा कि सर हर 6 महीने पे मुझे बार बार ये दांतों में खून की शिकायत और ये सारी चीजें, दांत दर्द करना बड़ा आम हो गया है मेरे साथ में। हर 6 महीने में मेरा एक एग्जाम छूट जाता था। ठीक है, इसी रीजन के चलते, और एकदम एग्जैक्ट एग्जाम के समय पे होता था ये सारी चीजें। तो मैं गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से पूछा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर ने सिंपली मुझे कहा कि तुम्हें किसकी कमी है? किसकी कमी है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जानते होंगे तो जो भी खट्टे की कमी, यानी कि आप एसिट्रिक एसिड का वो करिए, क्या करिए? सिंथेसिस, नींबू खाइए, इन सब चीजों को खाइए। तो विटामिन सी की कमी है आप में। किस चीज की कमी है? विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी की वजह से देखिए, अभी तो दांत है, अभी तो नहीं आ रहा है खून, यानी कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन जैसे ही डेफिशिएंसी होती है विटामिन सी की,
दांतों में से खून आने लगता है, यानी बगल वाला भी देख के बता देगा तुम्हारे दांतों में से खून आ रहा है। यानी किसी भी एलिमेंट की कमी से कौन से चेंजेस हो रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। कौन से चेंजेस? कई बार सुना होगा कि यहाँ का पानी खराब है और इसी की वजह से तुम्हारा बाल बहुत झड़ रहा है। कई बार आम बातें हो गई, बहुत बार सुना होगा। तो हो सकता है उसमें क्या होगा, जो मिनरल रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द हेयर ग्रोथ के लिए वो क्या हो, अब्सेंट हो, और वो अब्सेंट होंगे और आप पानी वही इंसर्ट कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो हो सकता है भैया क्या हो, आपके बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, इन द सेम मैनर अगर मान लीजिए प्लांट में किसी भी एलिमेंट की क्या हो गई, कमी हो गई, तो उस कमी की वजह से क्या हो सकता है, उसके अंदर में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे प्लांट पूरा बढ़ रहा है, उसकी लीफ कैसी थी, ग्रीन ग्रीन, अचानक से किसी चीज की कमी हो गई तो येलोइंग ऑफ लीफ हो सकता है। फ्लावर जो होना चाहिए, हम कहते हैं अरे अभी तक तो फ्लावर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी भी फ्लावर नहीं आया इसमें, यानी फ्लावर में क्या हो गया, डिले हो गया, देरी हो गई। तो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस which are taking place due to the deficiency of any elements। and भैया अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है तो आपके बॉडी में चेंजेस हो रहा है, उसी तरह से प्लांट की बॉडी में भी क्या होंगे, चेंजेस देखने को मिलते हैं। और वही जो चेंजेस होते हैं वो इंडिकेट करते हैं और ये बताते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। दिस सिम्टम्स अराइजेज due to deficiency of any element, then it is known as deficiency symptom. I am going to write this. Absence, or we can say that in the absence or deficiency, in the absence or deficiency of any element plant shows some morphological changes। कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि येलोइंग ऑफ लिप्स, डिलेज इन फ्लावरिंग, यानी हो सकता है लीफ कैसे होने लगे, येलो, या फ्लावरिंग में क्या हो गई, देरी हो गई। These all are indications of certain element deficiency, okay, are called as deficiency symptom। okay, so in the absence or deficiency of any element, plant shows some morphological changes। अगर किसी चीज की क्या हुई, उसमें कमी होगी तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे येलोइंग ऑफ लीफ, डिलेज इन फ्लावरिंग। ऑल दीज आर इंडिकेशंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसी। ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट क्या है, डेफिशिएंट है, एंड द सिम्टम्स आर नोन एज डेफिशिएंसी सिम्टम। डेफिशिएंसी सिम्टम। अब अगर मान लो मैं तुमसे पूछता हूं कि वहां पे, इससे पहले मैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन बताया था, कितना चाहिए था, 5 मिलीग्राम पर डे नाइट्रोजन चाहिए, हाइपोथेटिकल डाटा है, ठीक है, उसमें मत जाने कि 5 मिलीग्राम ही चाहिए। अगर मैं उसको 3 मिलीग्राम पर डे नाइट्रोजन दे रहा था, अब मान लो मुझे पता चला कि इसकी डिफिशियंसी से कुछ हो रहा है,
तो मैंने वहां पे 2 मिलीग्राम ऐड कर दिया, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। यानी अब मैं उसको कितना दे रहा हूं? 5 मिलीग्राम पर डे दे रहा हूं नाइट्रोजन। तो क्या उसके अंदर में डेफिशिएंसी होगी क्या? नहीं होगी। डेफिशिएंसी सिम्टम क्या हो जाएंगे? डिसअपियर। लेकिन अगर उतना मैंने नहीं दिया तो डेफिशिएंसी सिम्टम अभी भी क्या करेंगे? कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट विच इज गिवन, these are indication of certain element deficiency and are called the deficiency symptoms. Deficiency symptoms may vary from, so इसको नेक्स्ट में ले लेते हैं। यहां पे ऊपर मैं समझाता हूं इसको। Deficiency symptoms may vary from element to element. ओके, अब भैया इसका मतलब क्या है कि डेफिशिएंसी सिम्टम वेरी करता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। तो इसको मैं सिंपली एक डायग्राम से समझाना चाहूंगा। इसे डायग्राम है, ओके, हाइड्रोपोनिक्स हमने पढ़ी थी, तो वहां हमने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था। मान लीजिए यहां से एक फनल थी जहां से हम क्या ऐड कर रहे थे? ओके, यहां से हम मिनरल और न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे थे। अब मान लीजिए मैंने यहां पे ये जो 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, मान लीजिए मैंने 5 मोल या 5 मॉलिक्यूल्स लिए, किसके? नाइट्रोजन के। किसके लिए? नाइट्रोजन। और उतने ही इस साइड में ले लिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल्स लिए सल्फर के। किसके लिए हमने? सल्फर के। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं पे। डेफिशिएंसी सिम्टम में वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, यानी डेफिशिएंसी सिम्टम किस तरह से वेरी करता है इसको हम देखेंगे। मान लीजिए यहां पे 5 एलिमेंट सल्फर के हैं, 5 एलिमेंट नाइट्रोजन के हैं, बराबर अमाउंट में है। अब हमने क्या किया, यहां से रिमूव कर दिया 1 सल्फर एलिमेंट। रिमूव कर दिया एक सल्फर एलिमेंट को, हमने क्या कर दिया? रिमूव करके निकाल दिया। तो जैसे ही आपने एक सल्फर एलिमेंट को निकाला, ये जो प्लांट की लीफ है ना, लीफ, ये लीफ जो हो गई, ये कैसी होने लगी? येलो। या ये लीफ पहले कैसी थी? मान लीजिए पहले कैसी थी? ग्रीन कलर। कैसी थी? ग्रीन कलर की थी। जैसे ही मैंने एक सल्फर एलिमेंट को निकाला, ये जो लीफ है वो ग्रीन से कैसे कन्वर्ट हो गई? किस कलर में कन्वर्ट हो गई? येलो कलर में। किसमें हो गई? येलो कलर में। यानी हो या ना हो, ये सल्फर की डेफिशिएंसी के वजह से ही ये लीफ ग्रीन से किसमें कन्वर्ट हुई है। तो इससे क्या पता चलता है कि सल्फर की डेफिशिएंसी से जो हमारी लीफ ग्रीन थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? येलो में। यानी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर द कलर ऑफ लीफ इज बिकमिंग फ्रॉम ग्रीन टू येलो। तो येलो जो हो रहा है ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से हुआ है? सल्फर की डिफिशियंसी से। अब अगर बात कर लें इसकी, यहां पे मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को रिमूव कर दिया। किसको रिमूव कर दिया? तो यहां जो स्टेम पहले जो थी, सुनिएगा, स्टेम मान लीजिए पहले मोटी स्टेम थी। कैसी थी? मोटी। मैंने जैसे ही
5 मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन था उसमें से एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को रिमूव किया तो ये जो स्टेम है काफी थिन हो गई। पहले मैंने क्या बोला, मोटी थी, अब ये स्टेम क्या हो गई, लीन एंड थिन हो गई। क्या होने लगी, लीन एंड थिन। पहले ये स्टेम काफी मोटी थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को निकाला, 5 मॉलिक्यूल में से एक को निकाला, ये स्टेम कैसी हो गई, थिन। तो हो या ना हो, ये सिम्टम बताता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन दिस स्टेम इज बिकमिंग थिन। तो ये थिन हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो नाइट्रोजन ये किस चीज को मोटा करने में मदद कर रहा था, स्टेम को, ओके, स्टेम को। लेकिन जैसे ही इसकी डिफिशियंसी हुई, स्टेम क्या हो गई, थिन। तो जैसे ही बोला कि डेफिशिएंसी सिम्टम में वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। देख लीजिए, सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से लीफ ग्रीन से क्या हो गई, येलो। मान लीजिए नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से स्टेम जो थिक था क्या हो गया, थिन हो गया। तो इट में बी वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू एलिमेंट। क्लियर है, ओके। तो इसको आप लिख सकते हैं, अब देखिए, अब ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम है, अगर मान लीजिए जैसे मैंने पहले वाला प्लांट बनाया था, अगर आपको याद है, तो मानिए इस प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो है 5 मिलीग्राम, जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट 5 मिलीग्राम पर डे। यानी ये इसका क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, सीसी मतलब क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर इस प्लांट को कितना मिल रहा है, नाइट्रोजन 3 मिलीग्राम पर डे नाइट्रोजन इसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3 मिलीग्राम। तो अगर इसको 3 मिलीग्राम ही मिलता रहा बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, क्या होगा, यानी इसमें 2 मिलीग्राम की क्या हो गई, हमेशा कमी है। तो अगर ये इसको देते रहे लॉन्ग ड्यूरेशन तक, क्या देते रहे, लॉन्ग ड्यूरेशन तक, यानी उस प्लांट में कमी चलती रहे लंबे समय के लिए, तो इस प्लांट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है, डेथ। क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए जो इसकी रिक्वायरमेंट है 5 मिलीग्राम, मैंने इसको 5 मिलीग्राम पर डे नाइट्रोजन देना स्टार्ट कर दिया, कितना दे दिया, यानी 3 से उठा के इसके कंसंट्रेशन को कितना बढ़ा दिया, 2 मिलीग्राम, कितना बढ़ा दिया, 2 मिलीग्राम पर डे। यानी जो नाइट्रोजन की कमी थी, कितनी कमी थी, 2 मिलीग्राम पर डे, मैंने 3 मिलीग्राम और प्लस 2 मिलीग्राम यानी 5 मिलीग्राम पर डे देना स्टार्ट कर दिया। यानी 2 मिलीग्राम की जो कमी थी उस कमी को मैंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। मान लीजिए इधर से नाइट्रोजन कितना दे दिया, 2 मिलीग्राम। पहले इसमें कितना था, 3 मिलीग्राम पर डे नाइट्रोजन। इधर से कितना दे दिया, 2 मिलीग्राम। तो टोटल कितना हो गया, 5 मिलीग्राम। अगर मैंने क्या दे दिया, जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन इतना, उसको क्या दे दिया, एलिमेंट प्रोवाइड कर दिया। ये जो डेफिशिएंट एलिमेंट था उसको प्रॉपर अमाउंट में दे दिया, तो डेफिशिएंसी सिम्टम रहेंगे या खत्म हो जाएंगे। भैया अब कमी रही कहां, तो जब कमी ही नहीं है तो डिफिशियंसी जो सिम्टम आए हुए थे वो भी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। सो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। डेफिशिएंसी सिम्टम्स में डिसअपियर, डेफिशिएंसी सिम्टम में डिसअपियर when deficient mineral and
nutrients, mineral and nutrients is provided to plants. ओके, तो बात वही है कि डेफिशिएंसी जो सिम्टम है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हम डेफिशिएंट मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे टू द प्लांट। जिसकी कमी है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हाउएवर द नेक्स्ट लाइन which is given in the NCERT, however if deprivation, this is the term given in the NCERT, deprive से बना हुआ है। deprivation means क्या होता है, lacking मतलब अगर मान लीजिए जिस एलिमेंट की डेफिशिएंसी थी उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी अभी भी चल ही रही है। जैसे 5 मिलीग्राम चाहिए था, कितना दे रहे हैं हम, 3 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, यानी हमेशा उसको क्या हो गई, 2 मिलीग्राम की कमी है। तो हाउएवर इफ डिप्राइवेशन यानी उस एसेंशियल एलिमेंट की कमी अभी भी लगातार चल रही है, हाउएवर इफ डिप्राइवेशन कंटिन्यूज it may lead to death of plant. ओके, अगर उस एसेंशियल एलिमेंट की कमी लगातार उसमें बनी हुई है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप हैं, हम सबको क्या चाहिए, खाना, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये सारी चीजें हम खाते हैं। मान लीजिए एक दिन खाना नहीं मिला, चलिए काम चल गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन नहीं मिला तो भी काम चल गया। लेकिन अब मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसको 15 दिन से कुछ नहीं मिला, तो पानी पी के वो ज्यादा दिन तक काम चला नहीं पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन इनकी उसके बॉडी में कमी हो जाएगी और उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, यानी वो मर जाएगा, है कि नहीं है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर में जो मिनरल्स की कमी थी वो हमेशा कंटिन्यू रही, उसको बाद में कभी किसी ने खाना दिया नहीं, इसलिए उसकी क्या हो गई, मृत्यु। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी भी प्लांट के अंदर जिस चीज की कमी है वो चीजें अगर प्रोवाइड कर देंगे तो डेफिशिएंसी सिम्टम क्या हो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर वो जिस एलिमेंट की कमी है वो चलता जा रहा है, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इट मे लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट, तो पहले इसको लिख लीजिए, next point which is given in the NCERT, that is deficiency symptoms। ओके, अब यहां पे एक पॉइंट दिया गया है, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान रखिएगा किस चीज पे, ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलाइज और मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन प्लांट्स। ओके, तो यहां पे दो चीजें, दो पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे दो चीजें आएंगी और दोनों को हमको अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम आते हैं या किसमें डेफिशिएंसी सिम्टम आते हैं। अगर मान लीजिए किस चीज की कमी हुई, यहां पे किस चीज का बेसिस लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ
mobility of elements. Mobility, this means there are two types of things, or there are two types of element. First, which can changes its position from one location to another, then that elements are known as mobile elements. उनको क्या बोलेंगे? मोबाइल एलिमेंट. मतलब ये यहां से यहां जा सकते हैं, ये यहां से यहां आ सकते हैं, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? मोबाइल एलिमेंट, जो अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. लेकिन दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या होगा? जो एक जगह फिक्स है तो फिक्स रहेगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है और नहीं करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमोबिलाइज्ड एलिमेंट और इमोबाइल एलिमेंट. तो पहला मैं लिखता हूं मोबाइल एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट? मोबाइल एलिमेंट. इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सेलफोन एलिमेंट, ये वाला ना समझ लेना कि पबजी वाला एलिमेंट नहीं, जिससे आप लोग पबजी खेल रहे हो, पबजी वाला नहीं. ये मोबाइल एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स की बात हो रही है. कौन से एलिमेंट्स? जो एलिमेंट्स आपके प्लांट में है, जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. जैसे ये कोई एक प्लांट है, ये प्लांट की जो लीफ है वो है यंग लीफ. कैसी लीफ है? यंग लीफ है. ओके. और यहां पे ये जो पार्ट है प्लांट का, इसको मैं बोल देता हूं ओल्डर टिश्यू. ओके, ओल्डर टिश्यू. ठीक है. तो जैसे हमारे घर में, खानदान में सब जगह यही होता है कि देखिए, जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक कमाते हैं, और कमाने के बाद वो एक जगह आकर रुक जाते हैं और कहते हैं इतना सारा तो है, तो ये सारी चीजें किसके लिए है? धन दौलत पैसा रुपया सब किसके लिए? मेरे बेटे के लिए, यंग बेटे के लिए. किसके लिए है? क्यों? क्योंकि वो क्या हो गए हैं? ओल्ड हो गए हैं. अब उनको कहाँ जाना है? चिता पे. तो चिते पे पैसे लेके जाएंगे? नहीं जा सकते. तो ओल्डर टिश्यू, किसकी बात कर रहा है? ओल्डर टिश्यू. तो जो कुछ भी रहता है वो दान कर रहे हैं अपने लड़के को. किसको दान कर रहे हैं? उसी तरह से देयर आर सम ओल्डर टिश्यू इन द प्लांट्स, दे ट्रांसफर सम एलिमेंट टू द यंग लीफ. वो क्या करते हैं? ओल्डर टिश्यू ट्रांसफर करते हैं कुछ एलिमेंट्स को टू द यंग लीफ. तो these are the elements which are transferred from older to the young. This means it is considered under which category? मोबाइल कैटेगरी. कौन सा एलिमेंट है भैया? ये लोग कौन सा एलिमेंट है? मोबाइल एलिमेंट्स. तो मोबाइल एलिमेंट्स किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहे हैं? ओल्डर टिश्यू के द्वारा. किसको ट्रांसफर हो रहे हैं? यंग लीफ. तो आप बताइए ट्रांसफर कहां से हुए? बुढ़े ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी? बच्चे को. तो उसकी प्रॉपर्टी अब उसकी रही क्या? अरे रही क्या? अब उसकी प्रॉपर्टी वो नहीं रही, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी? बच्चे को. किसको दी? अपने बेटे को दे दी. यानी ओल्डर टिश्यू के पास में क्या हो गई? कमी हो गई. क्या हो गई? क्योंकि उसने सारा चीज किसको दे दिया? यंग लीफ को. किसको दे दिया? यंग लीफ को. तो यहां पे मैं बोल सकता हूं डेफिशिएंसी ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स. इसकी बात कर रहा हूं. डेफिशिएंसी ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स अपीयर्स फर्स्ट इन older part of plants. समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इस ओल्डर भाई साहब ने अपनी जितनी कमाई थी सब किसको दे दी? अपने बेटे को, यंग लीफ को. तो डेफिशिएंसी जो दे दी तो उसके में क्या हो गई? कमी. तो पहली बार डेफिशिएंसी सिम्टम किसमें आएगा? ओल्डर में आएगा कि यंगर में आएगा? बताइए. ऑब्वियस सी बात है, जिसने दिया उसमें क्या हो जाएगा? उसकी कमी हो गई. तो डेफिशिएंसी ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर पार्ट्स ऑफ प्लांट. ओके. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स? सो जो एग्जांपल है मोबाइल एलिमेंट्स के,
उसको आप एक सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं। सिंपल ट्रिक क्या है? सिंपल ट्रिक है पंकज शर्मा मैनेजर। पंकज शर्मा क्या है? मैनेजर। सो दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द मोबाइल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट इनको मैं बोल सकता हूं? इनको अगर मैं बोलूं कौन से एलिमेंट है ये सारे? दीज आर मोबाइल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट है? मोबाइल एलिमेंट्स। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी पहले ओल्डर लीफ को होगी या यंगर लीफ को होगी, तो आंसर क्या होगा? ओल्डर पार्ट्स को या ओल्डर लीफ को होगी, क्योंकि ओल्डर लीफ वाला किसको दे देता है? यंग लीफ को दे देगा, और उसके अंदर में क्या हो जाएगी? मोबाइल एलिमेंट्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और मोबाइल एलिमेंट्स जो कौन कौन से हैं? पी स्टैंड फॉर फॉस्फोरस। किसके लिए? देखो ए से अल्युमिनियम हमने पढ़ा नहीं, तो ए को छोड़ दीजिए। एन फॉर नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। के स्टैंड फॉर पोटेशियम। किसकी बात कर रहा हूं? पोटेशियम। ओके। और एस शर्मा से क्या निकाला? एस फॉर क्या होगा? सल्फर। क्या हो जाएगा? और मैनेजर से एम निकाला। क्या निकाला? इसको यहां कहीं लिख देता हूं मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ओके। तो इसको हम याद कर सकते हैं पंकज शर्मा मैनेजर, यानी डेफिशिएंसी सिम्टम क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन प्लांट। पहला है मोबाइल एलिमेंट्स। क्या बात कही है? मोबाइल एलिमेंट्स। मोबाइल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देके बताया कि ये ओल्डर टिश्यू है और एक ये यंगर लीफ है। तो ओल्डर टिश्यू अपना जो भी एलिमेंट्स होता है, जो मोबाइल एलिमेंट्स है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसको? यंग लीफ को। तो उसके अंदर में खुद के अंदर में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी मोबाइल एलिमेंट्स की। और ये मोबाइल एलिमेंट्स की कमी पहले ओल्डर में दिखेगी कि यंगर में दिखेगी? तो जवाब होगा ओल्डर नहीं, यंगर और ओल्डर किसमें दिखेगी? ऑब्वियस सी बात है ओल्डर में दिखेगी, क्योंकि ओल्डर ने दे दिया। ओके। एग्जांपल ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स जिसकी कमी हो जाएगी ओल्डर पार्ट्स ऑफ लीफ में। पंकज शर्मा मैनेजर। पी से फॉस्फोरस, एन से नाइट्रोजन, के से पोटेशियम, ए और जे से कोई एलिमेंट होता नहीं, एस से सल्फर, एम से मैनेजर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोबाइल एलिमेंट। और इसी के पास में पहले इसको आप नोट कर लीजिए 1 मिनट में। पहला तो ये पार्ट हो गया। दूसरा, जो एलिमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहला तो हो गया। जो दूसरा होगा वो क्या होगा? इमोबाइल एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट? इमोबाइल एलिमेंट। यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं चेंज कर पाएंगे? बिकॉज इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल, इट इज हैविंग द स्ट्रक्चरल रोल, नॉट द फंक्शनल रोल। यानी कि अगर बात करें तो बेसिकली ये किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। ठीक है, तो इसलिए ये इजीली रिलीज नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है आइए देखते हैं। सपोज करिए ये एक प्लांट है, सेम वही, ये एक है क्या? यंग लीफ। ओके। और ये मान लीजिए ओल्डर टिश्यू। ओके, यंग लीफ, ओल्डर टिश्यू। तो बात करें इमोबाइल एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट? इसके पास जो ओल्डर टिश्यू है इसके पास एक एलिमेंट है, और ये इमोबाइल एलिमेंट है कौन? कैल्शियम। क्या है बेटा जी? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। और ये जो कैल्शियम है ये नेचर में कैसा है? इमोबाइल। इमोबाइल, ये मोबाइल नहीं है।
यानी इट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम ओल्डर टू यंग लीफ, ये ओल्डर से यंग लीफ में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और जब ये ओल्डर से यंगर में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो आप खुद बताइए इमोबाइल एलिमेंट्स की कमी यंगर में होगी ओल्डर में होगी? ओल्डर में तो है ही, और ये यहां से यहां जा नहीं पा रहा है। तो बताइए, आप खुद बताइए, इमोबाइल एलिमेंट्स जहां है वहीं रखा हुआ है, किसके पास नहीं पहुंच रहा है? तो यंगर लीफ में किसकी डेफिशिएंसी होगी? ओके, सो इन यंगर पार्ट ऑफ प्लांट there will be deficiency of कौन सा एलिमेंट? इमोबाइल एलिमेंट्स। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी इमोबाइल एलिमेंट्स। एग्जांपल क्या है? कैल्शियम। क्या बेटा जी? कैल्शियम। कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम। तो इसकी डेफिशिएंसी किसमें होगी? यंगर पार्ट में पहले होगी, बाद में किसमें होगी? ओल्डर में। और अगर बात करें मोबाइल, तो वहां पे डेफिशिएंसी पहले किसमें होगी? ओल्डर में, देन यंगर में। बात समझ में आई कि नहीं है? ये जो इमोबाइल एलिमेंट्स हैं, एक और बात दे रखी है कि जो इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, इनका कौन सा रोल होता है? STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं? स्ट्रक्चरल रोल। यानी ये जो कैल्शियम +2 आपको दिख रहा है इमोबाइल एलिमेंट, ये स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल बी। मान लीजिए सेल वॉल है ए की, ये है सेल वॉल बी की, और इन दोनों के बीच में यहां पे क्या था? अभी कुछ देर पहले बताया था मिडिल लैमिला। क्या था? और ये मिडिल लैमिला किस चीज से बना था? अभी कुछ देर पहले बताया था कैल्शियम पेक्टेट। क्या बताया था? कैल्शियम पेक्टेट। यानी ये स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहा है। क्या बनाने का काम कर रहा है? स्ट्रक्चर। ये पुराने वाले से नए में रिलीज नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अपने पापा की हड्डी तोड़ के खुद में लगा लूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उनका स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। ठीक है ना? तो हड्डी जो है वहां से निकाल के अपने में लगा लो, इट इज नॉट सो गुड। ओके, जो भी इमोबाइल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? इमोबाइल, यानी ट्रेवल नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकते। तो ओल्डर टिश्यू में ये पाए जा रहे हैं, कहां नहीं जा पा रहे हैं? यंगर लीफ में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो पहली बार डिफिशियंसी किसमें होगी? इमोबाइल एलिमेंट्स की, यंगर में होगी। और ये क्यों नहीं रिलीज होते आसानी से? क्योंकि इनका कौन सा रोल है? स्ट्रक्चरल रोल है। दे आर हैविंग सम स्ट्रक्चरल रोल, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं? बनाते हैं। अगर वो वहां से रिलीज होगा तो उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज हो जाएगा, स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये याद रखिएगा, मोबाइल एलिमेंट्स की पहली डिफिशियंसी होगी किसमें? इसमें होगी ओल्डर लीफ, ओल्डर पार्ट्स ऑफ प्लांट में। और इमोबाइल एलिमेंट्स की किसमें होगी? यंगर लीफ में। और जो एग्जांपल है मोबाइल एलिमेंट्स के कौन से हो जाएंगे? पंकज शर्मा मैनेजर। कौन है? पंकज शर्मा मैनेजर। P फॉर फॉस्फोरस, पंकज N फॉर नाइट्रोजन, इज ए PAN, K फॉर पोटेशियम, एजे से कुछ नहीं है, शर्मा से S फॉर सल्फर, और लास्ट में जो था वो क्या था? मैनेजर से मैग्नीशियम। और एक ही एग्जांपल दिया है इमोबाइल एलिमेंट्स का, दैट इज कैल्शियम। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, राइट इट डाउन फर्स्ट। सॉरी, नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग को दे रखा है, जो हमें पढ़ना है, वो पॉइंट है
prevalent deficiency symptoms in plants. Okay, this is the topic, prevalent deficiency symptoms in plant. यानी अलग अलग प्रकार के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, नोन एज द क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, ये सारी टर्म्स को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि ये किन किन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी में ये सारी चीजें होती हैं. ओके, तो द फर्स्ट which is given is chlorosis. Chlorosis, CHLOROSIS, chlorosis. सिंपली इस वर्ड में अगर आप घुस के देखेंगे ना तो कुछ आपको समझ में आएगा. क्लोरोसिस. ओके, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा, अगर कहीं पे ये टर्म देखें आप, सेनिसेंट लीफ इज नथिंग बट इट इज नोन एज ओल्ड लीफ. कौन सा लीफ? ओल्ड लीफ. यानी सेनिसेंट इज ए टर्म विच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग ओल्ड. ओके, सो कभी कभी ये टर्म भी दिया रहता है. सेनिसेंट मीन्स क्या हो जाएगा? ओल्ड. तो ये कहीं लिख लीजिएगा, सेनिसेंट लीफ, दिस मीन्स ओल्ड लीफ, यानी कि सेनिसेंट का मतलब ही होता है ओल्ड. अब आइए क्लोरोसिस पे. ठीक है, इसमें घुस के देखते हैं. क्लोरोसिस हम ब्लैक बोर्ड में नहीं, मीन्स यहां घुस के देखते हैं क्लोरोसिस में. अब पता चला मैंने बोला घुस के देखते हैं, वो कई बार अंदर नहीं, यहां नहीं जाना है, क्लोरोसिस पे रुको. क्लोरोसिस सिंपली कुछ तो लग रहा है ना कि क्लोरोफिल से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? तो क्लोरोसिस इज द टर्म is used when it is called as loss of chlorophyll. अगर क्लोरोफिल की कमी हो रही है या क्लोरोफिल लॉस हो गया है तो दिस इज नोन एज क्लोरोसिस. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज क्लोरोसिस. और इस क्लोरोफिल के जाने की वजह से, अब मुझे ये बताइए कि हम जानते हैं कि जो प्लांट की लीफ होती है वो कैसी होती है? ग्रीन. कैसी होती है? ग्रीन. और ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. कौन सा पिगमेंट पाया जाता है उसमें? क्लोरोफिल पिगमेंट, इसलिए वो ग्रीन होती है. इसका मतलब यहां पे क्लोरोफिल का क्या हो गया? लॉस. सो लॉस ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज क्लोरोसिस. तो भैया अब पत्ती क्या ग्रीन रहेगी? क्या पत्ती ग्रीन नहीं रहेगी. तो ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल देयर इज, क्या होगा बेटा? येलोविंग ऑफ लीफ या येलोविंग ऑफ लीव्स टेक्स प्लेस. जो ये लीफ पहले ग्रीन थी वो कैसी हो जाती हैं? कैसे हो जाएंगी? येलो हो जाएंगी. इसी पूरे टर्म को बोला जाता है क्लोरोसिस. क्लोरोसिस के समय में क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल का क्या होगा? लॉस होगा, क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी और इसकी वजह से जो ग्रीन लीफ होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो लीफ में. तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से क्लोरोसिस होता है? सो मैं बोल सकता हूं इसको डेफिशिएंट एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है, उनको मैं डेफिशिएंट एलिमेंट बोल सकता हूं ना. सो जो डेफिशिएंट एलिमेंट है जिनकी वजह से क्लोरोसिस होती है उनको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है. देखिए, जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पुजारी, पंडित. उसी तरह से जो लोग चर्च में पूजा करते हैं उनको बोला जाता है मूंग्स. क्या बोलते हैं? मूंग्स. MONKS. ठीक है, मूंग्स. अब मान लीजिए मूंग्स भाई साहब को मंजन करना है. क्या करना है? मंजन. यानी सुबह सुबह उठे हैं, उनको क्या करना है? टूथपेस्ट करना है. तो मूंग्स भाई साहब हैं, उन्होंने फिर से मांगा, तो मैं बोलूं मूंग्स फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? मांगे. फिर मांगे क्या? मंजन.
मोंक्स फिर मांगे मंजन। मोंक्स फिर से क्या मांग रहा है? मोंक्स फिर से क्या मांग रहा है? मोंक्स फिर मांगे मंजन। क्या मांग रहा है? मंजन। तो आप हिंदी में भी यहां लिख सकते हैं, मोंक्स फिर मांगे मंजन। मोंक्स फिर से क्या मांग रहा है? मंजन मांग रहा है। सो MO, MO स्टैंड फॉर molybdenum. MO stand for molybdenum. Is it right or not? Wrong. It stands for molybdenum. N, N stand for nitrogen. K, K stand for potassium. S, S stand for sulfur. Okay, so मोंक्स पूरा हो गया। MO stand for molybdenum, N stand for nitrogen, K stand for potassium, S stand for sulfur। और भैया फिर में से Fe निकाल लो। Fe for क्या हो जाएगा? फेरस या आयरन। मांगे से सिंपली क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम। और मंजन, मंजन से मैंगनीज। और Zn से क्या हो जाएगा? जिंक। तो देखिए जैसे ही, देखिए हर चीज रिलेटेड है। C फॉर क्या होता है? चर्च। क्या होता है? चर्च। देखिए C फॉर चर्च, और चर्च में पूजा करने वाले को क्या बोलते हैं? मॉन्क्स। क्या बोलेंगे? तो क्लोरोसिस का मतलब हुआ लॉस ऑफ क्लोरोफिल, और इसी की वजह से लीफ कैसी होने लगती है? येलो। और इसके जो डेफिशिएंट एलिमेंट है उसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है मोंक्स फिर मांगे मंजन। MO फॉर molybdenum, N फॉर नाइट्रोजन, K फॉर पोटेशियम, S फॉर सल्फर, Fe फॉर फेरस, Mg फॉर मैग्नीशियम, Mn फॉर मैंगनीज and Zn फॉर जिंक। So this is the simple trick in order to remember the all the deficient elements of the chlorosis. So write it down. It is most important thing. Next, the second thing which is given, कभी कभार देखा होगा कि अचानक से लीफ टूट टूट के पिटियोल से अलग हो जाती है, यानी कि अपने स्टेम से निकल के, ब्रांचेस से निकल के गिरने लगती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई। जब तक आप अटैच हो किससे? प्लांट से, तब तक आप लिविंग हो। लेकिन जैसे ही आप क्या हो गए? पीले होने के बाद सीधे नीले हो गए और गिर गए, तो आप भूरे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? भूरे हो जाते हैं ना कुछ दिन बाद सूरज में सूख के। तो जैसे जब तक आप अटैच है तब तक क्या है? लिविंग। लेकिन जैसे ही आप टूट के अलग हो गए तो आप क्या हो जाएंगे? नॉन लिविंग। तो इस सेंस की बात कर रहा है। द सेकेंड टर्म which we have to read is necrosis. What it is? Necrosis is simply death of tissue. क्या होगा? necrosis का मतलब क्या होता है? death of tissue. death of tissue पार्टिकुलरली अगर बोलें तो कौन सी टिश्यू की डेथ की बात हो रही है? लीफ टिश्यू। किसकी बात हो रही है? तो नेक्रोसिस इज ए टर्म विच मीन्स डेथ ऑफ द टिश्यू, और पार्टिकुलरली अगर बात करें तो किस टिश्यू की डेथ की बात हो रही है? लीफ टिश्यू। यानी कि किसका टूट के अलग होना? लीफ का टूट के अलग होना, लिविंग से नॉन लिविंग होना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। और ये नेक्रोसिस के अंदर में जो डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं, क्या होते हैं? डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर होंगे। क्या होंगे? अपीयर्स
ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। तो अगर इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो गई तो ही लीफ के टिश्यू की क्या होगी, डेथ होना, यानी लीफ क्या होंगे, मरना स्टार्ट कर देंगे, डिटैच होना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द मेन प्लांट। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनकी डिफिशियंसी से नेक्रोसिस होता है, उसको भी याद करने के लिए एक ट्रिक है। हिंदी में पहले लिखेंगे कुक का मग। क्या है बेटा, कुक का मग। किसका मग है, कुक का, मतलब जो कुक होता है वो मग से पानी डालने का काम करता है, तो कुक का मग। तो सिंपली CUK कुक, CWC के नहीं, CUK कुक का मग, कुक का मग। ओके, सो द एलिमेंट Cu stand for copper, K stand for potassium, Ca stand for calcium and Mg stand for magnesium. ओके, सिंपली सो आप याद कर सकते हो नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होगा, डेथ ऑफ द टिश्यू, पार्टिकुलरली कौन सी टिश्यू की डेथ होगी, लीफ टिश्यू। और ये जो नेक्रोसिस होती है ये कुछ एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होता है, और ये एलिमेंट्स हैं जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। कुक का मग, किसका मग, कुक का मग, CUK Ca मग, Cu फॉर कॉपर, K फॉर पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर कमी होगी तो किसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, लीफ टिश्यू की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। राइट इट डाउन। नेक्स्ट दैट इज, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन रुक जाएगा, यानी सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होगा। एज वी नो दैट कि जब कभी भी सेल डिवाइड होती है, सेल का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें, यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज अ टर्म अनदर थिंग। डिफरेंशिएशन की बात करें, डिफरेंशिएशन का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से इंक्रीज होती है, यानी कि सेल नंबर इंक्रीज होता है, यानी कि किसी भी प्लांट की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अगर सेल नंबर इंक्रीज नहीं होगा तो उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो सेल डिवीजन को कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी डिफिशियंसी से सेल डिवीजन ऑफ प्लांट रुक जाता है। तो थर्ड दैट इज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी अगर ये एलिमेंट्स की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, और वी कैन से दैट डेफिशिएंट एलिमेंट्स, यानी जो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई एक सेल है, आफ्टर सम टाइम इट विल डिवाइडेड इनटू 2, आफ्टर सम टाइम इट विल डिवाइडेड इनटू अनदर 2, इट विल डिवाइडेड इनटू अनदर 2, यानी कि सेल नंबर goes on increasing whenever any organism is taking, या or any organism growth is taking place, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ रही तो सेल डिवीजन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी क्या हो गई, कमी हो गई, तो ये सेल डिवीजन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, या सेल डिवीजन रुक जाता है। ऐसे कौन से एलिमेंट है जो इनहिबिट कर देते हैं सेल डिवीजन को, इसको भी याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। बस आपको चर्च के पुजारी के पास जाना पड़ेगा। चर्च के पुजारी को क्या बोलते हैं, मोंक्स। क्या बोलेंगे, मोंक्स। बस आपको इतना याद करना है, MO स्टैंड फॉर मॉलिब्डेनम, N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, K स्टैंड फॉर पोटेशियम एंड S स्टैंड फॉर सल्फर। So molybdenum
नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर चर्च में कौन नहीं हो, मोंक हो, तो चर्च में कोई पूजा कर पाएगा गॉड की? नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से अगर किसी भी प्लांट में ये सारे एलिमेंट्स ना हो, कौन ना हो, मोंक ना हो, तो प्लांट कभी भी सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, यानी सेल डिवीजन रुक जाएगा। किसकी ऑब्सेंस में? मोंक की ऑब्सेंस में मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर। नोट इट डाउन फर्स्ट। The next point which is given in the NCERT, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए 2 मिनट रेस्ट करके। जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है यहां पे वो है डिलेज फ्लावरिंग। ओके, डिलेज फ्लावरिंग इसका मतलब इन एलिमेंट्स की अगर कमी हो जाए तो फ्लावरिंग समय पे नहीं हो पाएगी। नाम में ही लिखा हुआ है डिलेज फ्लावरिंग। क्या लिखा हुआ है? डिले। डिले मतलब देरी से। सिंपली अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो डिले मतलब क्या होता है? दिस ट्रेन हैज बीन डिलेड फॉर 250 आवर्स फ्रॉम इट्स शेड्यूल्ड टाइम। इसका मतलब क्या बोलते हैं कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से कितने घंटे लेट हो गई? 2.5 घंटे लेट हो गई। तो उसी तरह से डिलेज फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग से क्या मतलब कि फ्लावर यानी कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फ्लावर होगा, तो ये फ्लावर के आने में देरी अगर होती है तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके डेफिशिएंसी की वजह से फ्लावरिंग में देरी हो सकती है। ऐसे कौन कौन से डेफिशिएंट एलिमेंट होंगे जिनकी वजह से क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? डिलेज इन फ्लावरिंग, यानी फ्लावर सही समय पे नहीं आएगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं कैसी? मंडेज। किससे याद कर सकते हैं? मंडेज। देखिए संडे के बाद क्या आता है? मंडे। संडे को सब ऑफिस बंद रहते हैं। एक्चुअली इस समय तो सारे ऑफिस बंद है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय सारे ऑफिस बंद है। जब मन करे सोए, जब मन करे जागे। लेकिन जब आप मान लो ऑफिस टाइम हो रहा है, जैसे मान लीजिए जब सर्कुलर मैनर में सब कुछ चलने लगेगा, उस समय की बात कर रहा हूं, तो एक ही दिन मिलता है संडे। उस दिन पूरी रेस्ट करते हैं हम लोग। लेकिन संडे के बाद क्या आता है? मंडे। और मंडे बहुत बुरा लगता है क्योंकि संडे को तो एकदम आराम से सोए, लेकिन मंडे को क्या करना पड़ता है? जल्दी जल्दी जगना पड़ता है क्योंकि क्या आ जाना है? ऑफिस। क्या होगा? क्योंकि ऑफिस में चले गए, डिले हो गए ना, तो बॉस क्या कर देगा? सैलरी काट देगा। लेकिन यहाँ सैलरी नहीं करना। तो कोई भी प्रोफेशनल होगा किससे हेड करता है? मंडे से। MO क्या बेटा? MO। MO सिंपली स्टैंड फॉर मॉलिब्डेनम। N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। डी 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 यहां पे मंडेज का जो डी है ये बता रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो डी मतलब डिले फ्लावरिंग, और यहां से आपको लेना होगा एस। एस मतलब सल्फर। किसकी बात कर रहे हैं? सल्फर। सो मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर की डेफिशिएंसी होती है तो फ्लावरिंग में क्या हो जाएगी? देरी। दैट इज डिले इन फ्लावरिंग। These are the 4 points which we have to remember. So write it down. Delay flowering means किसकी डिफिशियंसी की वजह से होगी? मंडे। किसकी डिफिशियंसी से? मंडेज। MO for molybdenum, N for nitrogen, D for delays in flowering, S for sulfur. Write it down. Next 5th point, that is
स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, उनकी डिफिशियंसी की वजह से प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो जहां का तहां रहता है, बढ़ता नहीं है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि कॉपर एंड सल्फेट, कॉपर और सल्फेट, अगर कॉपर और सल्फेट की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, कॉपर और सल्फेट की डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी प्लांट में, किसकी, कॉपर और सल्फेट की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो भैया इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, दो प्लांट है, ओके, सेम साइज का है, मान लो प्लांट ए और प्लांट बी, दोनों प्लांट को मैंने 5 मई 2019 को 5 मई 2019 को लगाया, किस मई को, 5 मई 2019 को लगाया। अब इस प्लांट की ग्रोथ देख रहा हूं 1 ईयर आफ्टर, इस प्लांट की भी ग्रोथ मैं देखूंगा 1 ईयर आफ्टर। अब मैं इन दोनों प्लांट्स की ग्रोथ को एक एक ईयर बाद देख रहा हूं, तो ये जो बी प्लांट है ना, बी प्लांट कुछ इतना बढ़ गया, ओके, लेकिन जो ए प्लांट है, ये मान लीजिए कौन सा प्लांट है, बी प्लांट, तो अब किस डेट की बात करूंगा, 5 मई 2020, ओके, इस प्लांट की बात करूंगा, ये भी कौन सा डेट, 5 मई 2020, तो ये है ए प्लांट और ये है बी प्लांट। तो आप अगर देखोगे तो बी प्लांट क्या है, बड़ा है एज कंपेरिजन टू ए प्लांट, लेकिन दोनों जिस टाइम बोए गए थे दोनों क्या थे, सेम, एकदम सेम हाइट के थे, सेम कॉन्फ़िगरेशन के थे, लेकिन एक साल बाद भी इसकी हाइट काफी बड़ी है, इसकी हाइट काफी क्या हो गई, छोटी हो गई है। क्यों, क्योंकि इसमें किस चीज की डेफिशिएंसी हो गई है, कॉपर और सल्फेट की क्या हो गई है, सल्फेट सिंपली फिर SO4 2- सल्फेट की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी, क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। इसीलिए क्या होगा बेटा, इसकी ग्रोथ क्या हो गई है, रुक गई है, स्टंटेड ग्रोथ हो गई है, लेकिन इसकी ग्रोथ क्या हो गई, प्रॉपर चल रही है। क्यों, क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है, इसमें नहीं थे, तो इसकी ग्रोथ क्या हो गई, रुक गई। तो स्टंटेड ग्रोथ इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ copper and sulfate. So at last one line is very important. First of all, write this thing, okay, the stunted growth is basically due to deficiency of copper and sulfate। और लास्ट जो लाइन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग को लिखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर एंड सल्फेट। तो अब एक नोट पॉइंट आएगा जो इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है, उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। नोट जो दे रखा है एनसीईआरटी में, ये लाइन दे रखी है, देयरफॉर deficiency of any element can cause
multiple can cause multiple deficiency symptoms कह रहा है therefore deficiency of any element can cause multiple deficiency symptom। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट है वो मल्टीपल डेफिशिएंसी, उसके वजह से मल्टीपल डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं पहला क्लोरोसिस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, क्लोरोसिस, तो उसमें हमने जो ट्रिक पढ़ी, क्या पढ़ी, मोंक्स क्या मांग रहा था, मोंक्स, फिर मांगे क्या मांग रहा था, मंजन। ओके, यहां पे जो ये एमओ था मोलिब्डेनम को डिनोट कर रहा था, एन नाइट्रोजन, के पोटेशियम, एस सल्फर। और जब हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा, कौन सा पॉइंट पढ़ा, अगर मैं बोलूं क्या पढ़ा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। क्या मैंने पढ़ा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। वो किसकी कमी से हुआ, मोंक्स। अगर मैं बोलूं नेक्रोसिस, क्या बोलूं, नेक्रोसिस, ये किसकी कमी से हुआ, अगर याद होगा, कुक का मग, कुक का मग। ओके, ये सारी चीजें अगर मैं यहां देखता हूं, क्लोरोसिस क्या है, मोलिब्डेनम, यहां भी क्या है, मोलिब्डेनम, है कि नहीं है। अगर यहां पे मैं देखूं, यहां पे क्या है, पोटेशियम, यहां भी क्या है, पोटेशियम,